वी ऑल हैव दैट वन रिलेशनशिप या फिर हार्ट ब्रेक स्टोरी जो हम बेसिकली किसी को बताते हैं नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच ट्रॉमेटाइजिंग या फिर बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, तो हम वो खुद में ही रख देते हैं, राइट? सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द स्टोरीज विद सम टी। और अगर तुम लोग को लग रहा है कि इसमें चाय नहीं है, ये नाटक कर रही है, तो लुक let's go and read the very first story. My last boyfriend was the most performative man I have ever encountered. Okay. A pathological liar, cheater and manipulator. Oh my god. What is pathological? What is pathological liar is someone who compulsively and excessively lies. Before we even officially dated, he was already juggling other girls like it was a sport. Basic तो एक लड़की को इतनी लड़की मिल कैसे रही है, पहली बात. Once we got together, he hit clubs and hooked up with random women. His own friends confirmed it. First of all, I do not understand कि तुम दोस्त कैसे बन जाते हो ऐसे लोगों के. Like, why the hell are you friends with such people? You know, ऐसे लोगों को तुम्हें सबसे ज़्यादा आइसोलेट करके छोड़ देना चाहिए. Like रेगिस्तान में छोड़ देना चाहिए. उनको पागल कर देना चाहिए, बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट डिजर्व हैविंग फ्रेंड्स. ठीक है, मेरा ऐसा है कि अगर तुम कमीने के दोस्त हो तो तुम भी कमीने हो, ठीक है? तो आई डोंट ट्रस्ट द पर्सन एज वेल एज आई डू नॉट ट्रस्ट द फ्रेंड. ऑन आवर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी ही कॉल्ड मी बाय हिज एक्स नेम. No apology, no shame. Then came the anger issues and constant mental torture, so I left for my sanity. Good girl. The best thing a woman can do is getting the hints in the initial stage. पता चल गया? Months later, he returned crying for a second chance. No. He met me, pretended he missed me. Then that same night went to the hotel where his previous situationship conveniently appeared. He acted creepy with her too. Hours after I want you back, he was already making someone else uncomfortable. Yeah, sure. You would expect that from someone like him, right? पहली बात तो जिस बंदी ने मुझे ये स्टोरी भेजी है, गाइस आई किड यू नॉट, शी इज़ सो प्रिटी. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ सुंदर है, इस पर कैसे किसी पे चीट नहीं करना चाहिए, ठीक है? दैट्स नॉट इवन द केस हियर. बट मैं ये बोल रही हूँ कि वाई द हेल आर यू नॉट हैप्पी विथ वॉट यू हैव भाई? लाइक या तो तुम मत आओ कमिटमेंट में, या तो तुम करते रहो. बट ये क्या है भाई? मूविंग ऑन. He followed all his exes and old flings, stalked them, liked their post and made me block my own cousin. What the hell? He criticized my clothing while drooling over girls wearing almost nothing and calling them sisters. Yeah, I have seen men playing the sister card. Like, अगर तुमको कोई बंदी पसंद है, ठीक है, पता है तुम्हें अगर तुम उसको अप्रोच करोगे तुम्हारी अप्रोच करने वाली शक्ल तो है नहीं, the best thing you can do to make her talk is making you her brother. तौर तेरी अंबरां दा मून सुन ले, जट्टी तेरी खोज हुण सुन ले. He lied about everything: age, name, career, body count, number of exes. A scammer in man's costume. Yeah, a con artist. Every third person is a con artist, trust me. He even flexed about the girls he slept with, true or not, just to look cool. I am very tempted to expose his identity, but let's just say if you encounter this specific combination of traits, run. She. Why the hell this is happening? So this was the first story, guys. I hope तुम इससे कुछ सीखे हो कि जो दिखता है वो होता नहीं है. एंड आंखों पे पट्टी बांध के मत रहा करो. बी लाइक हर, जिसको इनिशियल स्टेज में पता चल गया कि बंदे में दिक्कत थी एंड शी रैन फॉर हर लाइफ. तुम भी भागो. मूविंग ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट स्टोरी. माई फर्स्ट PF चीटेड ऑन मी विथ लाइक 40 to 50 गर्ल्स. What the hell? 40 to... Is that even possible? And like, भाई वो मतलब I was one of the girls from him. I mean, एक बंदी थी जिसके साथ वो शुरू से था, लाइक सबसे स्टार्टिंग से, एंड उसके साथ रहते हुए हम लोगों के साथ आता था. एंड ब्रो ही क्लेम्स कि वो बंदी के लिए हमेशा लॉयल रहा, कि मैंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा भले ही 1000 को साथ रखा हो. उसने उस बंदी के नाम का टैटू बनवाया था, टेम्परेरी ऑफ कोर्स. या भाई ओके. एंड वो उससे भी ब्रेकअप करके बैठा है. और
उस टैटू को पूरे छपरी तरीके से इंक से कट किया है एंड हटवाया भी नहीं, लाइक यो छपरी। इस छपरी को 40-50 लड़कियां मिल कैसे रही है? तुम लड़कियां क्या कर रही हो? 40-50, ओह माय गॉड, दैट्स जस्ट सो। ये जो लड़के होते हैं जो हाथ में ऐसे नाम वाम लिखवाते हैं इंक से, ओह माय गॉड, गेट अ लाइफ गाइस। यू कैन जस्ट शो योर लव बाय बीइंग लॉयल विथ ओनली वन गर्ल, ठीक है ना। मेरा ऐसे पारा चल रहा है, चाय ठंडी हो रही बट मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। विल रीड द नेक्स्ट स्टोरी, ध्यान से सुनो। आई हैड वन रिलेशनशिप माई होल लाइफ, ओके। It wasn't a relation, bro. It should be a Savdhan India or Crime Patrol series with numerous episodes of my stupid self-awareness. I love it. Long story short, the guy was behind me for 4 months, okay? And when I finally said yes, it became an ultimate top secret for 6 months for whatever reason he convinced me. Oh, you can't tell anyone, huh? Because मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते पे नज़र लग जाए. Then came the list of women. From office, from Instagram, and I got so confused with the number of side chicks when I realized I was the one too. The real one was with him for more than 7 years. Oh, true love. Oh my god, true love. They were in living relationship, bro. Oh my god. God bless her, bhai. She was literally the breadwinner, buying him branded stuff, iPhone, paying rent, and she was his personal maid too for his house codes. The girl is stupid. If she has the money to give him, if she has the love to give him, if she has the power to work for him, she is stupid. I'm so sorry, love. But why the hell would you work for a man like him? ये क्या बात होती है भाई? Like तुम उसको खाना भी खिला रहे हो, बच्चा है वो तुम्हारा कि मम्मी मम्मी मेरे को आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन दिलाओ, मम्मी मुझे खाना खिलाओ, मम्मी। माँ को थप्पड़ मारना चाहिए, बेटे को नहीं। You are the mother here. मारो खींच के। Anyways, तो the guy was 26. Okay, no, he is 13. Mentally, he is 13, my love, and he was very abusive with her. Oh my God, no. When she reached out to me, it sounded like a dark crime podcast. Oh my God. And then again, I was the victim too. He was there just because I am a virgin. Wow. Okay. And he told everyone I'm the one behind him, and he rejects it. He also hit girl. He also hit me, almost forced himself on me. It was basically assault on his own delusional girlfriend. Somehow I had the strength to rescue myself. God bless you, my love. I just hope कि तुम ऐसे situation में वापस ना पड़ो, and please be safe, ठीक है? Anyways, once I broke up, he immediately started hitting on my best friend. तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑब्वियसली बताया होगा, ठीक है? प्लेइंग द विक्टिम कार्ड दैट आई चीटेड, दैट ही इज मेस. ओके, ही इज अ मेस, ही इज एन इडियट पर्सन, ही हैज़ नो सेंस, ठीक है? वो सब तो उसने सच बोला, ही इज अ मेस. बट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के पास जाके ही इज हिटिंग ऑन योर बेस्ट फ्रेंड. गजब टू बी बाज आदमी. He even cried like actual tears. भाई इतना मुश्किल नहीं है रोना, ठीक है? मैं मेरे मरे हुए कुत्ते के बारे में सोचने लगूँ तो मैं रो दूँगी. Crying is very easy. The man was already 3 years older than me. I simply told him, your existence itself is so embarrassing. I am embarrassed on behalf of you. And of course, I got called a feminist. The best thing that the man has ever called you is a feminist. Proud. Be proud. You should be feminist. इस बंदे को ढूंढो, मारो डंडे से कि हाउ लाइक तुम बंदी को असॉल्ट कर रहे हो. हाँ, तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो. दिस इज़ सो ब्रूटल. ओ माई गॉड, आई होप यू आर सेफ. एंड यू नो बेसिकली यू शुड रिपोर्ट दिस गाय. ये जो भी बंदा है ये फिर यही चीज़ करेगा. तुमको ये चीज़ रिपोर्ट करना चाहिए ताकि कोई दूसरी लड़की इसका शिकार ना बने. एंड मे बी बन भी रही होगी, बिकॉज कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती माय लव, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी. छी भाई. I just hope, my love, that now you are happy, and I'm so sorry तुम्हारे साथ ये सब हुआ, but I hope कि तुम अगली बार से ऐसे कोई भी सिचुएशन में ना पड़ो. एंड नाउ यू नो बेटर. और जो भी लड़कियां हैं गाइज, अग्रेसिवनेस और ये जो हिंट्स होती है ना कि अब्यूज़ करने वाला, ये सब बंदे के इनिशियल बिहेवियर में दिख जाता है, ठीक है? तुमको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, निगलेक्ट मत करो. तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो कि तुम यहाँ बैठे हो, 10 लोग वहाँ पे असॉल्ट हो रहे होंगे,
ठीक है, 10 लोग वहाँ पे किडनैप हो रहे होंगे, तो प्लीज़ लुक आउट फॉर द बिहेवियर्स भाई. इट्स सो टेरिफाइंग. मैं तो बैठ के पढ़ रही हूँ, इस लड़के ने ये चीज़ झेला है, एंड तुम भी झेल सकती हो अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हें बोल रहा है कि भाई द मैन इज़ नॉट राइट फॉर यू, द वुमेन इज़ नॉट राइट फॉर यू, आंखें खोलो, देखो. तुम कानून नहीं हो, तुम अंधे नहीं हो सकते, ठीक है. There was this one guy I dated for 4 years. Out of those 3 years, he told me he does not have a phone. Don't tell me you believed that. No, you should not. And that's why he can't talk to me. Wow. तो तुमने मान लिया? Okay, ठीक है. He always said he is working at his dad's factory and all that nonsense. He made me uninstall WhatsApp. He did not allow me to post photos, stories, anything. He made me ghost my friends. He made my Instagram logged in on his phone. Okay. You said अच्छा, तो पहले इसने तुम्हें कुछ साल तक बोला कि उस पर फ़ोन नहीं है, फिर उसने फ़ोन लिया ऐसा ऐसा करके, और फिर उसने तुम्हारा इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में लॉगिन किया, और तुमको फ़ोटोज़ कुछ डालने नहीं देता था, और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से भी अलग कर दिया. ओके, ठीक है, बट आई वॉजंट अलाउड टू इवन आस्क फॉर हिज पासवर्ड. हाँ, तो तुम कैसे पूछोगी? क्यों भाई, तुम्हारे साथ है वो, मेहरबानी कर रहा है, क्यों पूछोगी तुम उससे? प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है. वी मेट ट्वाइस अ ईयर. ओ भाई, इतने बार मिले हो तुम? ट्वाइस. पीरियड्स भी 12 बार आते हैं साल में. One day after a fight, I got very anxious. I went on this astrology app and took tarot reading. There I met a guy who started talking to me on Instagram through private account. I had a private account only because he used to read every chat and create a scene. Okay, girl, I understand. I didn't have WhatsApp, and even my female friend's private conversation became his problem. He is the problem, my love. After listening to everything, this tarot guy said one line. He is definitely cheating on you. Oh, वो तो मैं first line में बोली, he is cheating on you. He is abusive. He is a guy who would cheat on you. Yeah. I was in my Delulu world. Okay, I don't blame you for that, but I am angry, but ठीक है. Believing he would never, so this guy created a fake account. तो basically the astrology guy जिसने तुम्हें बोला कि वो तुम उस पे चीट कर रहा है, वो तुम पे चीट कर रहा है, उसने एक फेक अकाउंट बनाया. उसने उस अकाउंट पे 3 से 5 महीने काम किया टू मेक इट लुक रियल, ठीक है. देन फॉलोड हर बॉयफ्रेंड, द गर्ल्स बॉयफ्रेंड, ठीक है. विद इन नो टाइम माई बॉयफ्रेंड टेक्सटेड दैट फेक अकाउंट. इन जस्ट 5 to 7 days they were practically sexting. Chi. When I confronted him, he twisted everything and somehow made it look like it's my fault. Yeah, that's what you call guilt trip, manipulation, playing the victim card. It always comes from men who is doing everything, not the person who's suffering. After that, I caught him cheating 4 to 5 times more. Still continued. Eventually, the relationship ended brutally because I slapped him in the middle of road. Sorry. That's how my first ever cheating experience ended. ठीक है. The worst part, I texted him I love you and he did not reply for 3 days while he was continuously replying to that fake account जो एक लड़के का है. After 3 days, he told me he didn't have his phone, but I knew exactly where his phone was. And no, I did not confront him normally. I told him I'm coming to the city this weekend for my orientation and asked if he wanted to meet. He got excited. He planned the entire date. On the day we were supposed to meet, I was already at the cafe. That's where I confronted him. Okay. This is so traumatizing, and the worst part is, guys, कि जितनी stories हमने यहाँ पढ़ी, सब in a way similar ही है. मतलब एक से बढ़कर एक है, but कोर चीज़ एकदम सिमिलर है. हाँ, कि बंदा मैनिपुलेटिव है, बंदा अब्यूजिव है, उस पर एंगर इश्यूज़ है. तो गाइस, आई एम टेलिंग यू,
जब एक इंसान का ट्रस्ट टूटता है, ठीक है, जब एक इंसान फिजिकली मेंटली अब्यूज़ हुआ होता है, उस पर क्या बीतती है भाई. इट्स जस्ट सो सैड कि मैंने अभी इतने बार सुन लिया है रिलेशनशिप इज़ समथिंग लाइक, कि मैंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी देखे हैं, ठीक है, बट द थिंग इज़ जहाँ अच्छा रिलेशनशिप होता है वहाँ लड़का लड़की दोनों की आंखें खुली होती है, ठीक है. दे आर ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, दे आर नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द सराउंडिंग, दे आर ग्रोइंग इन द लाइफ. बट फिर मैं ऐसे रिलेशनशिप देखती हूँ जहाँ पे बंदे या बंदी को कोई बंदा मिलने के बाद, लाइक कोई इंसान मिलने के बाद, तो बंदा दुनिया से अलग हो जाता है, संत बन जाता है, हिमालय चला जाता है कि उसकी दुनिया में अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस उसको शादी करके सेटल ही होना है. नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है, मेंटली टॉर्चर. एंड इट्स जस्ट सो सैड कि बंदा उस चीज़ से निकल भी नहीं पाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है. द थिंग इज़ कि यहाँ बैठ के कितना भी ज्ञान दे सकते हैं हम, बट हमें नहीं पता कि वो सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, राइट. तो आई जस्ट होप ऑल ऑफ माई पीपल आउट देयर, लाइट बहुत कम है अब, पूरी रात हो चुकी है. तो आई जस्ट होप ऑल ऑफ माई पीपल आउट देयर कि तुम थोड़ा सा आंखें खोल के डेट करो, लुक फॉर द इनिशियल साइंस, एंड आई जस्ट होप कि तुम सारे खुश रहो, ठीक है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है. क्या मुझे ये बोलना पड़ेगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. बाय.